Good morning, student. Today, now I am going to start a new chapter from civics. The chapter is electoral politics. My dear students, we must know the most common attribute. The most common attribute of democracy is that people have a right to choose their representative. This is a common attribute of democracy. That people of every democratic country choose their own representative to form the government to rule. Okay, this chapter that I am going to explain, highlight the importance of election for democracy. Okay, in this chapter we will learn that what is the importance of election in any democratic country. It tries to perceive how electoral competitions among parties serve the people. Okay, student, the prime aim of this chapter is to distinguish democratic election from non-democratic elections. This is the prime motto, students, of this chapter. Okay, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में क्या सीखने जा रहे हैं. देखो, आप ये समझो कि एक कॉमन एट्रीब्यूट है, एक कॉमन फीचर है ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री टू चूज देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव. हर डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और वही सरकार बनाती है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि इट ट्राइज टू परसीव how electoral competition among parties serve the peoples, and the prime aim of this chapter is to distinguish democratic election from the non-democratic elections. Okay, so now I am going to start this chapter with a case study of Haryana, a very small state of our country, students. ठीक है, and there was the assembly elections in 1987. Okay, before this election, since 1982 Congress was ruling this state, but now the people, students, were not happy the way the Congress was ruling the state, and one of the opposition leader, Devi Lal, now student started during this election campaign a न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस. देखिए, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको 1 मार्क्स में कि कौन सा स्ट्रगल उन्होंने शुरू किया था देवीलाल ने. न्याय युद्ध. ओके, चौधरी देवीलाल मीन्स स्टूडेंट्स अ स्ट्रगल फॉर जस्टिस, एंड देवीलाल, स्टूडेंट्स, फॉर्म ए न्यू पार्टी लोकदल. ही फॉर्म ए न्यू पार्टी लोकदल. ठीक है, ही मेड ए नंबर ऑफ प्रॉमिस for the farmer, for the small producers to grant the loan, whereas Congress, students, since it is a old party, was in confidence to win the election, and when the election took place, students, in Haryana, the party of Chaudhary Devilal won 76 out of 90 seats, means he got 2/3 majority. He got 2/3 majority, students. Okay, so by this case study, what we understand, हम क्या समझते हैं इस केस स्टडी से. हमने क्या समझा कि there was the party, students, which was ruling in the state since last 5 years lost the elections, or it was because the people of Haryana was not, students, happy the way Congress was ruling the state, and that is why one common things that we see that Devi Lal, students, made an attractive promise to the people. People saw a hope there. That it will, students, make the differences in the state. It will make the differences. Okay, तो
automatically students that be a study in this chapter, and as you have seen the case study of Haryana, means there we find students that how people have a choice to change the ruler if it is not ruling in perfect manner to the state. Okay, so this is the common feature of democratic country. It was not only for the Haryana, but almost in every democratic country which is ruled by the democratic manner pursued or follow such practical elections in their own country. Okay, so once students we have seen the case study of Haryana, and we will make the differences with it also, that what is the difference of this. As we have discussed students, that today we will discuss about the election of democratic and non-democratic students where the people participate. Here you can see students with the case study of Haryana, about which we have already discussed. See, he is Devilal, Chaudhary Devilal, who became the chief minister of Haryana in 1987. My dear students, as the Lok Dal party, we have discussed that how they make the promise to waive all the outstanding loans of small manufacturers and Miss Farmer, and that is the resulted students a bumper voting for the Chaudhary Devilal there, as he students got 76 with alliance, 60 students was the Devilal and other was the alliance, means the party got the complete 2/3 majority to form the government, and as he was a student called by the president to form the government, and he became the chief minister. So this is the way electoral politics take place in our country, students. Okay, now student, you have seen about the case study of Haryana, and through the case study of Haryana what we have noticed, what we have judged students. देखिए होता क्या है ना कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब कोई पार्टी मेजोरिटी के साथ जीतता है तो गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, जो उस स्टेट के गवर्नर होते हैं, उसको इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए. ठीक है, तो इन दिस केस स्टडी वी हैव आल्सो नोटिस स्टूडेंट्स, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज इनवाइटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है, एंड मीन्स ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. ठीक है, पहला पॉइंट ये हम देखें. दूसरा देखते हैं हम क्या, कि इफ पीपुल आर नॉट हैप्पी विद द रूलिंग पार्टी दे कैन वोट अगेंस्ट इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. है ना, डेमोक्रेसी में आप सीधा मान के चलिए कि जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, जनता जिससे खुश रहेगी उसे ही वोट देगी. ठीक है, एक और पॉइंट हम लोग इसमें नोटिस किया स्टूडेंट्स कि इलेक्शंस कैन लीड टू चेंज इन द गवर्नमेंट एंड आल्सो इट्स पार्टी. सबको बदल कर रख देती है अगर जनता चाहे तो. ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू अट्रैक्ट वोटर्स. देखिए देवीलाल ने प्रोमिसेस किया कि हम लोन माफ कर देंगे, ये कर देंगे. तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट्स try to attract the voters while making various kinds of promises. This is the feature of democracy. ठीक है, तो अब आपने स्टूडेंट्स देखा कि किस प्रकार डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं. अब हमें यह भी देखना है कि why election is important in a democratic nation. अब इलेक्शंस महत्वपूर्ण क्यों है किसी भी डेमोक्रेसी में. देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी. कोई भी डेमोक्रेसी हो, इलेक्शन वहाँ रेगुलरली होता है. द टाइम ऑफ इंटरवल मे बी वैरीज फ्रॉम वन टू अनदर स्टेट. पिछले चैप्टर में हमने मैस्को की कहानी पढ़ा था, वहाँ पे चुनाव 6 वर्षों में होता है, हमारे देश में 5 वर्षों में होता है. तो जो एक टेन्यूअर है, इंटरवल ऑफ इलेक्शन है, इट मे बी डिफर फ्रॉम वन टू अनदर, बट द फैक्ट दैट इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शन is held regularly. There are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people's representative. आज दुनिया में सैकड़ों ऐसे देश हैं जहाँ की जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है. तो कैन बी थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन on the basis of education, experience or knowledge. No students, this is not. It is because mass population of our country है ना are illiterate. They have no education means students there. That's why this will not be fair for the democracy that is based on equality. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कि why election conducted. इलेक्शन क्यों जरूरी है हमारे लिए.
ठीक है, आप हरियाणा की केस स्टडी में देखिए, अगर इलेक्शन नहीं होता, ठीक है, तो कांग्रेस जो रूल कर रहा था वही रूल करता। द गवर्नमेंट स्टूडेंट्स मे बी चेंज एज ए डिक्टेटर, आर्बिट्रेरी रूल हो जाता वहाँ पे। बट द बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इवन द रूलिंग पार्टी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द इलेक्शन, ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज वी हैव इलेक्शन स्टूडेंट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इलेक्शन से गुजरते हैं, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट नोटिस करें कि वाई इलेक्शन इज इसेंशियल, इलेक्शन क्यों इसेंशियल है, तो हम पाते हैं इलेक्शन स्टूडेंट्स इज इसेंशियल फॉर द फॉलोइंग रीजन। इन कारणों की वजह से इलेक्शन इम्पोर्टेंट है हमारे देश में। क्या है? इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट, हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो सरकार बनाती है। अगर इलेक्शन नहीं होता तो हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं कर पाते। चूजिंग दोज हु मेक लॉज एंड टेक डिसीजन फॉर देम, हम वैसे लोग को चुनते हैं जो हमारे लिए कानून बनाता है, जो हमारे लिए फैसले लेते हैं। एंड गेटिंग टू चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द फॉर्मेशन ऑफ लॉज, हम ये भी करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाई स्टूडेंट्स इलेक्शन इज कंडक्टेड, बिकॉज इट ऑफर चॉइस टू द पीपल, where people can decide, where the people can decide students that who is better for them, that can lead a proper development of the country, ठीक है। तो for this following reason students election is essential because it aware the people for the welfare, it aware the government for the welfare of the peoples। ये इलेक्शन ही है कि सरकार हमारे प्रति जिम्मेवार होती है। अगर इलेक्शन नहीं होता, हमने पिछले कई चैप्टर में देखा स्टूडेंट, जहाँ इलेक्शन नहीं है वहाँ लोगों को अधिकार नहीं मिलते हैं, लोग अपनी बातों को अच्छी तरह से रख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसे डर नहीं है कि जनता हमें हटा सकती है, ठीक है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ लोगों को डर है, तो डर का कारण सिर्फ इलेक्शन है। उसे डर है कि मे बी अगले इलेक्शन में हमको हटा दिया जाए, ठीक है। तो फॉर दिस स्टूडेंट्स, अब देखिए, चलिए इलेक्शन एक कॉमन एट्रीब्यूट है ऑफ एनी डेमोक्रेसी का, लेकिन हाउ कैन बी से ए इलेक्शन एज ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लेकिन हम एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे कह सकते हैं, ठीक है। इफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन स्टूडेंट्स कैन बी कॉल्ड इलेक्शन इफ इट इज हेल्ड रेगुलरली, अगर इलेक्शन प्रॉपर इंटरवल पर रेगुलरली हो रहा है तो हम उसको डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। इफ इलेक्शन इज हेल्ड फ्री एंड फेयर, अगर हम इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाते हैं तो, ठीक है, और द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, ठीक है, और जनता जिसको प्रेफर करे वही इलेक्ट हो, तब हम इसको फेयर कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्शन फेयर होता है, ठीक है। दूसरी चीज है स्टूडेंट्स कि एवरी पीपल मस्ट हैव राइट टू वोट, हर लोगों को संपूर्ण अधिकार होना चाहिए चुनाव में भाग लेने के लिए, तब हम इसको डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आज का पॉइंट हम यहीं तक छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, कल हम देखेंगे मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कल हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स, ओके। हैव ए नाइस डे।